Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके बच्चावाड़ी, वी वर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें अभी तक हमने कूलम्स लॉ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स किए हैं और सवाल भी किए हैं, ठीक है। और देखो थर्ड चार्ज का कैसे एडजस्टमेंट होता है, दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्जेस का एडजस्टमेंट हम कुछ ऐसे करेंगे कि तीनों भी चार्जेस क्या हों, इक्विलिब्रियम में हों, ठीक है। सो वी हैव डन प्रॉब्लम्स ऑन दिस वन। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैग्नेटिज्म के चलते जनरेट होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के चलते आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो समझो भाई साहब, क्या किया जाए, समझ लो ये एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के आजू बाजू एक फील्ड रहेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब इस फील्ड का जो इफेक्ट है वो वाशी तक रहेगा, नहीं ना। तो जहाँ पे भी आप किसी और चार्ज को लाने की कोशिश करेंगे, या तो वो चार्ज अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या तो रिपल्शन, ठीक है। जो जिस दायरे में ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज? The region around the charge wherein another charge will either feel an attraction or a repulsive force, ठीक है। So electric field is what people exists in a region where an electric charge experiences an electrostatic force. Electrostatic force आपका भाई साहब repulsive भी हो सकता है, it can be repulsive or it can be attractive as well, ठीक है। When a charge is placed in an electric field, it experiences an electrostatic force in the electric field of a positive charge. If another unit positive charge is placed, then it experiences a repulsive force in that field, ठीक है। एक भाई साहब चार्ज है और इसके फील्ड में अगर आपने किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाया, it will feel a repulsive force, ठीक है। On the other hand, if a unit positive charge is placed in the electric field of a negative charge, then it will feel a attractive force, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे, यहां से फील्ड ऐसे आउटवर्ड जाता है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को देखेंगे तो ये इनवर्ड जाता है, इट बेसिकली गोज इनवर्ड। सो फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, इधर ध्यान देंगे जरा, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का भाई साहब आपका रेडियली आउटवर्ड्स होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली रेडियली आउटवर्ड्स। और आपका अगर नेगेटिव चार्ज है, इट इज बेसिकली रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, दिस इज रेडियली इनवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बेसिकली एक फील्ड ऐसा जनरेट करेगा जो रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा, और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है।
इसको जरा बंद कर देना, चार्जर का स्विच, थैंक यू। चलिए चार्जर का स्विच, ठीक है। टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकली माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसा ही देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट विल बी, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वी कैन जस्ट फील द इफेक्ट्स। माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स emerge radially outwards. However, in a negative charge the electric field lines go radially inward. तो ये भाई साहब रेडियली आउटवर्ड होकर रेडियली इनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। If one positive and one negative charge are placed close to one another, then the electric field lines appear to be coming from the positive charge and going to the negative charge. पॉजिटिव से ये नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है, ओके। तो आपका कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाट, रेडियली आउटवर्ड होंगे यहां से, ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। Have we understood this concept, people? ठीक है, for a positive charge the electric field lines will be radially outward and for a negative charge the electric field lines will be radially inward. क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए भाई साहब, ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ लो यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है और इस चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप यहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज ला रहे हैं Q नॉट का, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा प्लस Q चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, बेसिकली ये आपका एक टेस्ट चार्ज है, इसको ला रहे हैं। सो इट विल फील अ रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स वॉट एवर एप्लीकेबल, उसके चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज आप इसके फील्ड में ला रहे हैं, तो ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो भी चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहां पे लाते हैं प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स experienced by a unit positive charge per unit charge. So let us consider a positive charge, that is the source of charge, and a positive charge plus Q, which is so small that it cannot produce its own electric field. This small charge is known as the test charge. तो यहाँ पे भाई साहब हमने इसको क्या बोला है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। When the positive test charge is brought to the region of the electric field of the source charge, it experiences an electrostatic force. भाई साहब ये एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि आप इसको कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, ठीक है। The direction of the force experienced by the positive test charge gives the direction of electric field. मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, बाहर की तरफ, और यही आपका फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन बोथ विल बी द सेम, ठीक है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पीपलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। ये तो खैर स्केलर है आपका, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो मॉड वैल्यू ऑफ दिस फोर्स अपॉन क्यू। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली आपको आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। एक चार्ज के आजू बाजू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मेजरमेंट हम तभी ले पाएंगे जब किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके फील्ड पे ला रहे हैं। तो जो दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। दैट विल बी अ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। So that will be force upon the value of that positive charge which you have brought in the vicinity of the electric field. Clear है? Okay. तो अभी देखो यहाँ पे when the source charge आपका क्या है, पॉजिटिव है। Let us consider a positive charge Q dash Q naught which is placed in the electric field of charge Q. तो कोई चार्ज है भाई साहब Q, ठीक है, एक चार्ज है Q, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस लेट्स से r, ठीक है। आप इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ड्यू टू दिस चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट आर from this charge. ठीक है, so what you have done is you have bought a test charge plus q naught in at the same distance at the same point. ठीक है, so let us consider a positive charge q that is placed in the electric field of a charge q at a distance r as shown. As the source charge is positive, the direction of the electric field is radially outward. तो भाई साहब सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड. ये सोर्स चार्ज है आपका, ये टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए, लेकिन सोर्स चार्ज आपका ये है. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करनी है. समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिव पर्पसेस. ठीक है, ओके. सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Q नॉट विच इज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज. ठीक है, ओके. सो अभी देखो यहां पे Fe क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम देखेंगे कूलम्स लॉ से क्या होगा, K Q नॉट बाई आर का स्क्वायर अपॉन भाई साहब Q नॉट. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. ये कैंसिलम तो क्या हो गया, K Q बाई आर का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा है? टेस्ट चार्ज को हमने यूज तो किया है, लेकिन फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो आपने टेस्ट चार्ज को लाया, क्यों लाया, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए लाया. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज विच यू हैव बॉट. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, विच मींस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर. 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, ये अगर अपन Q नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, दिस विल बी K Q अपॉन R का स्क्वायर. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चार्ज Q है और इस चार्ज Q से आप एट अ डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, K Q अपॉन R का स्क्वायर. ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. इस K को अपन क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट 9 इंटू 10⁻⁹. क्लियर है? ओके. सो K Q अपॉन R का स्क्वायर. From the equation, we can observe that the electric field intensity is inversely proportional to the square root of the distance between them. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई साहब क्या है, 1/r स्क्वायर है. ठीक है, 1/r स्क्वायर है. क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. और ऐसा कोई भी रिलेशनशिप होता है जहां पे इनवर्स स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप होता है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं भाई साहब. अगर E ऐसा होगा ना, E का आपने देखा कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है भाई साहब, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो ऑब्वियसली बात होगी ये वाला जो होगा ऐसा ग्राफ दिखाएगा आपका. इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस. ठीक है, ओके. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. आपने देखा भाई साहब टेस्ट चार्ज उड़ गया, टेस्ट चार्ज को हमने लिया था लेकिन फाइनल वैल्यू में टेस्ट चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है. समझ में आ रहा है ये? तो फाइनल वैल्यू में क्या आया भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q. ये क्या हो जाएगा एट अ डिस्टेंस R, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, K Q बाई R का स्क्वायर. टेस्ट चार्ज सिर्फ हमने कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए लिया था, फाइनल फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. क्लियर है? ओके. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज बट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, ओके. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस R फॉर अ पॉइंट चार्ज देन द ग्राफ विल बी हाउ मच, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो ग्राफ में जब R की वैल्यू इंफिनिटी है, R की वैल्यू इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, देखो E की वैल्यू आपने क्या ली, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. तो मतलब K Q स्क्वायर बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर विच विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, मतलब ये 1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो व्हेन R इज इनफिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0. मतलब आप ऐसा समझो आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा है और भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ से समझ लो खारगर आपके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया. इस एक पॉइंट से खारगर भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया. तो वहाँ पे इस चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. सो इनफाइनाइट डिस्टेंस में आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज विल बिकम 0. ठीक है, अगर भाई साहब 0 पे आप रख रहे हैं, 0 पे रख रहे हैं तो ये अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये चार्ज है और इससे 0 डिस्टेंस पे आप अगर किसी चार्ज को ला रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, व्हेन योर distance from the source charge is almost negligible or 0, the electric field experienced will be undefined. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी ये? ठीक है, ओके ओके ओके.
सो व्हेन द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो अभी आपने देखा भाई साहब सोर्स चार्ज जब पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज जब नेगेटिव होगा भाई साहब कोई बात नहीं होगी, ठीक है। आपका समझ लो आपने यहाँ पे प्लस क्यू अगेन एक टेस्ट चार्ज लाया है, ये सोर्स चार्ज है। आपने देखा कि भाई साहब जब आप प्लस क्यू लेते हो, ठीक है, प्लस क्यू, तो आपका रेडियली आउटवर्ड होता है फील्ड, ठीक है। तो जब आप माइनस क्यू लोगे बच्चा पार्टी, अगर भाई साहब ये क्यू है और माइनस है, तो ये रेडियली क्या होगा भाई साहब, इनवर्ड, मतलब सारे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ होगा, मतलब ये क्यू चार्ज इसकी तरफ पुल होगा, ठीक है। सो अगेन ई विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन दिस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर हो गया। अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, देखो आपने इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एफ मतलब क्या हो गया, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, भाई साहब डायरेक्शन ऑफ आर में यूनिट वेक्टर, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का क्यू नॉट, ठीक है, के क्यू नॉट। तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब, आर क्या होता है, आर इंटू, देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, देखो के क्यू, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ये आपका प्रॉपर वेक्टर फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू है, एफ को किस में आप यूनिट्स में क्या है आपका, न्यूटन, और ये हो गया कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन अगर लेना है आपको, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो, एफ का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, और चार्ज क्या होता है, देखो आपका करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पियर और टाइम, तो एम्पियर और टाइम, समझम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल ए रेस टू -1 टी रेस टू -3, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया इसका डायमेंशन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज में आपका क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आता हूं भाई साहब? ओके 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 ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। अभी समझो यहां पे कि आपके इतने सारे चार्जेस हैं और आप यहां पे एक टेस्ट चार्ज ला रहे हो, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए भाई साहब एक फील्ड रहेगा, देखो यहां पे इस चार्ज के लिए एक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज के लिए एक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज के लिए एक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज के लिए एक फील्ड इस तरफ। ये सारे फील्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? तो लेट्स से यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज के लिए इस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q2 चार्ज के लिए कितना, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E1 और E2 दो वेक्टर्स हो गए, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा E1 प्लस E2, सिंपल वेक्टर एडिशन है, ठीक है। सो आपका Q1 चार्ज है, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, Q2 चार्ज है, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो अभी आप यहां से चलो, इसको भूल जाओ, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे। अभी जैसे यहां पे देखो, ठीक है, तो इसके लिए भाई साहब En, इसके लिए भाई साहब E1, इसके लिए E2, इसके लिए E3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब का एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, जितने भी आपके रिजल्टेंट है इन सब का एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड। आर वी क्लियर? ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या बोलता है भाई साहब, दैट एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज जो स्पेस में है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इन चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इन चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑल ऑफ दीज चार्जेस आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर ओन इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम। तो ये भाई साहब वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर में जैसे आप एडिशन करते हो वैसे वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एडेड वेक्टोरियली, ठीक है। Consider that n number of charges are present in a system and a positive charge is brought to a field as shown. These charges in the body are positive and the test charge is also positive.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई साहब समझ लो यहाँ पे 2 जन है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर्स का सम क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ द एंगल दैट इज देयर बिटवीन देम, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट E होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Therefore in a system of n charges the resultant electric field at a point in space is the vector sum of the electric field due to the individual charges. Are we clear to this one people? Okay. Regular polygon arrangement है भाई साहब, regular polygon arrangement. Due to the symmetrical arrangement of charges, the net electric field is zero at the center of a n-sided polygon. तो आपका समझ लो भाई साहब ये n-sided polygon है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। तो आपका एक सिमेट्रिकली ये चार्जेस अरेंज्ड हैं, ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो आपका भाई साहब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम चार्ज है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम डिस्टेंस है, एक दूसरे को कैंसिल करें। यहाँ पे देखो माइनस क्यू इस तरफ, प्लस क्यू इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू इस तरफ, प्लस क्यू इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आर दे गोइंग टू कैंसिल ईच अदर? ऑब्वियसली यस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस क्या है भाई साहब, सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। द रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन। तो एन साइडेड पॉलीगॉन में रेड आपका जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन एन साइडेड पॉलीगॉन, भाई साहब देखो कितना होगा, यहाँ पे टोटल एंगल की वैल्यू कितनी है, 360, दैट इज हाउ मच, 2 पाई, और एन साइडेड है, देखो दो साइड का एक, तो कितने आपके एंगल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा लिख सकते कि नहीं भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एन साइडेड मतलब 8 साइडेड पॉलीगॉन है, कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी भाई साहब 8 इंटू लेट्स से थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 360, ऐसा ही होगा ना भाई साहब। तो उसको अगर फॉर्मूला वाइज लिखें तो क्या हो जाएगा, एन साइडेड पॉलीगॉन इंटू द वैल्यू ऑफ ईच एंगल दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, है कि नहीं भाई साहब। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 पाई बाई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई बाई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैज टू बी जीरो। ओके। अगर आपने ट्राइंगल लिया तो यहां पे जीरो हो सकता है क्या, देखो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, क्योंकि देखो इन दोनों का एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो तभी जाकर वो जीरो होगा, ठीक है। फॉर अ ट्राइंगल यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3, ठीक है, n की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई, 3। सो एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा। जैसे अभी आपने देखा n इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो अभी आपका भाई साहब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई एन फॉर अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन दैट इज 3, तो ये हो गया आपका 120 डिग्रीज। हर एक एंगल आपका कितने का हो जाएगा भाई साहब, ये 120, ये 120 और ये भी आपका 120, ये 60 60 60 आपका भाई साहब है, ठीक है। सम नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो पॉलीगॉन अगर एन साइडेड का होगा, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, सारे साइड्स बराबर हो, अगर सारे साइड्स बराबर होंगे तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो, ठीक है। यहां पे आपने 8 साइडेड पॉलीगॉन लिया था, यहां पे आपने 3 साइडेड पॉलीगॉन लिया है, क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल है भाई साहब। एन साइडेड पॉलीगॉन है, 3 साइडेड पॉलीगॉन है, यहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, फॉर अ स्क्वायर, क्या आपका स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, बिल्कुल है भाई साहब, सारे साइड्स आपके क्या है, बराबर हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई एन, हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, एंड अगेन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। ओके। फॉर अ पेंटागन,
अगर सब अलग होंगे तो नहीं होगा, और एंगल्स अलग तभी होंगे जब आपका रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, देखो देखो यहां पे जैसे समझो, ये साइड ये साइड ये साइड, अगर ये सारे साइड जो है बराबर हैं, ठीक है, अगर ये सारे साइड्स बराबर हैं तभी जाकर आपका रेगुलर पॉलीगॉन होगा, और रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो ये सारे एंगल्स भी आपके क्या होंगे, बराबर, और अगर ये सारे एंगल्स बराबर होंगे तो ई नेट आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से साइड्स बराबर नहीं हुए तो ये इररेगुलर पॉलीगॉन होगा, और तब आपके एंगल्स बराबर नहीं होंगे, एंगल्स अगर बराबर नहीं होंगे तो ई नेट 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देखो हमने यहां पे दूसरा क्या लिया, ट्रायंगल लिया, और ये किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और साथ ही साथ ये एक रेगुलर पॉलीगॉन भी है। रेगुलर पॉलीगॉन है तो एंगल्स बराबर हुए, एंगल्स बराबर हुए तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सेंटर में 0 हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल है, एक साइड नहीं होगा, तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर दो साइड बराबर हुए और एक साइड आपका बराबर नहीं हुआ, दूसरे साइड्स के बराबर नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा। ऑल साइड्स हैव टू बी इक्वल, तभी जाकर वो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ही क्या है आपका, कि सारे साइड्स बराबर हैं। ठीक है, अभी वो ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता खैर, ठीक है, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जितने रेगुलर पॉलीगॉन्स देखेंगे उन रेगुलर पॉलीगॉन्स में हमेशा ये होगा कि आपके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, n = 4 स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर है, सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या रेक्टेंगल में भी ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब रेक्टेंगल इज नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रेगुलर पेंटागन। ध्यान से देखो यहाँ पे भाई साहब रेगुलर पेंटागन है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, और ये वाला साइड, और ये वाला साइड सब बराबर, तो आपके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होंगे वो सब बराबर, और सब इसके लिए आपका ई नेट क्या आ जाएगा, 0। हाँ, थीटा की वैल्यू आप क्या निकालेंगे भाई साहब, 2π/n, दैट इज 72 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन इन रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, अपने को केमिस्ट्री स्टार्ट करना है ना भाई साहब। Okay, Bacha Party, in electric fields, we will be looking at these things here. Two identical charge particles A and B, यहाँ पे identical charge particles हैं, ठीक है, और भाई साहब with A and B with charge plus Q, तो इनमें भाई साहब charge plus Q है, two identical charge particles with A and B, okay, so two identical charge particles A and B with plus are placed on the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle है तो भाई साहब सारे एंगल्स कितने के हो जाएंगे, 60-60 के। ठीक है, ओके, ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ A, तो ये सारे जो भी हैं आपके साइड ऑफ A। ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। आपको भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला विघ्नेश आदित्य, हाँ नहीं, मॉड ऑफ नहीं, तो इलेक्ट्रिक सिर्फ फॉर्मूला बता। क्यू नॉट, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो वो तो फोर्स हो गया kq/r। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे kq/r स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रो देखो ना, ये क्या है, F/q0 है ना भाई साहब, तो एक q आपका जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे kq/r का स्क्वायर। सिंपल, समझ में आ रही है? kq/r का स्क्वायर हो जाएगा। एक q आपका मरेगा, दोनों q में से एक q मरेगा, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं आप, सिंपल है। ठीक है, तो एक q मरेगा, तो मतलब kq/r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ओके, तो आपको यहाँ पे भाई साहब फील करना है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, आपने क्या पढ़ा कल, सुपर इम्पोज होता है, मतलब एक चार्ज पे दूसरे चार्ज का असर अलग अलग होगा। इस चार्ज पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस चार्ज पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। जिससे समझ लो यहाँ पे C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, C पॉइंट पे B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा,
और सी पॉइंट पे ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, लेकिन हम इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे ड्यू टू द चार्जेस विच आर लोकेटेड एट ए एंड बी इज गिवन बाय ई एंड ई बी। ठीक है, ओके। सो समझ लो आपका ई ए कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, के क्यू का स्क्वायर ना, के क्यू का स्क्वायर, सॉरी क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो गया ई ए, और ई बी का मैग्नीट्यूड भी वही। ठीक है, अभी देखो ये दो वेक्टर्स हैं भाई साहब, ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में वैल्यू कितनी है भाई साहब, 60 डिग्रीज की। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो देखो देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहां पे एक चार्ज ए और ये बी है, यहां पे एक चार्ज है भाई साहब क्यू का। ठीक है, यहां पे एक चार्ज है भाई साहब प्लस क्यू का, और यहां पे ऑब्वियसली भाई साहब आपके सारे जो साइड्स हैं वो ए के हैं। ठीक है, सारे साइड्स आर ऑफ लेंथ ए, सो ऑल दीज साइड्स आर ऑफ लेंथ ए। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो बट ऑब्वियस है कि ये 60 हो जाएगा, ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा, और ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा। आपसे पूछा है एट पॉइंट सी व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ ओके, सो भाई साहब यहां पे देखो, यहां पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, ये इस डायरेक्शन में होगा भाई साहब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, ये कितना हो जाएगा बोलो, ई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, तो ये आपका भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, ई ए सी हो गया। ठीक है, ई ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना भाई साहब, ए का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सी। ठीक है, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी, ये भी भाई साहब वही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस वही, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between them. Now here we have how much, आपका भाई साहब EBC का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर प्लस 2EBC EAC, और ये हो गया आपका cos of 60 डिग्रीज। ठीक है, EBC का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका, Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर ना भाई साहब। ठीक है, प्लस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये अंडर रूट में है पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका 2Q स्क्वायर बाई 4 पाई, यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, देखो 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि EBC और AC बराबर है, तो ये हो गया भाई साहब स्क्वायर, और cos ऑफ 60 मतलब होता है कितना, 1/2। ठीक है, तो ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, दिस एंड दिस आर ऑल द सेम, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3 टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स Q स्क्वायर, कौन सा, हाँ सॉरी ये Q ये सब Q हो जाएगा भाई साहब। हाँ, तो ये हो गया आपका Q है ना, सो ये हो गया आपका Q और ये हो गया Q। ठीक है, तो आपका क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच पीपलम, 3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसको भाई साहब अंडर रूट से बाहर फेंको। ठीक है, अंडर रूट 3 इधर रह जाएगा, और ये हो गया आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू द चार्जेस एट ए एंड बी। तो आप जब भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे वो वेक्टोरियल सम होगा, दैट विल बी बेसिकली अ वेक्टोरियल सम। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कैलकुलेट किया ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कैलकुलेट किया ड्यू टू बी, और फिर वेक्टोरियली इनको ऐड किया। ठीक है, सो दिस विल बी अंडर रूट, अभी देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो K लिखिए, K Q बाई ए का स्क्वायर,
सो आपका करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ठीक है, फॉर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। देखो यहां पे कितना दिया हुआ है, 18Q का चार्ज दिया हुआ है, यहां पे B है विच इज -25Q और यहां पे C है विच इज -16Q, ठीक है। आपको यहां पे O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो यहां पे आपको आई कैप और जे कैप में आंसर है, आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, अगर आप देखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू द चार्जेस एट A एंड B आर गिवन बाय, लेट्स से EA हो गया, ये EB हो गया और EC हो गया, ठीक है, ओके। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे देख रहे हैं कि भाई साहब ये 3 है और ये भाई साहब 4 है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, ठीक है, दिस विल बी 5, ओके। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, देखो BOC, अगर हम यहां पे ये थीटा ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/5, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। याद रखना कि साइन 37 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा आपका कितना है 3/5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 37 डिग्री, ठीक है। टू ऑब्टेन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो आप भाई साहब यहाँ पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो गया आपका 37 और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 53, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करोगे EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी K 18Q और ये कितना हो गया भाई साहब अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 2KQ, क्या ये समझ में आ रहा है। EB कितना हो जाएगा बोलो, EB विल बी इक्वल टू 16Q, B कहां से हो गया ये -25 है ना ये तो, हाँ EB यार EC होगा ये, ठीक है, EC कितना हो गया भाई साहब 16Q ये और ये हो गया KQ, EB कितना हो गया भाई साहब आपका KQ, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। और अगर हम देखेंगे भाई साहब EX अलोंग द X एक्सिस, तो आप देखोगे X एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, देखो यहां पे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ये EB, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ये और ये आपका भाई साहब इस तरफ है, तो X एक्सिस में क्या होगा इसका cos थीटा कंपोनेंट प्लस EC और इसका कोई कंपोनेंट निकलेगा 90 डिग्री होगा, और Y एक्सिस में क्या होगा, ठीक है, Y एक्सिस में क्या होगा भाई साहब आपका ये हो गया आपका X एक्सिस में अलोंग द Y एक्सिस द कंपोनेंट विल बी E sin 37 माइनस EA, ठीक है, ये sin 37 हो गया और माइनस EA, तो ये हो गया इतना, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ओके चलिए भाई साहब यहां पे दिया हुआ है आपका एक अरेंजमेंट, तो इधर भाई साहब आपका एक अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे है भाई साहब आपका A जिसका वैल्यू कितना है +18Q, ठीक है, यहाँ पे आपका B है भाई साहब जिसका वैल्यू कितना है -25Q, यहाँ पे है भाई साहब आपका C जिसका वैल्यू कितना है -16Q और यहाँ पे है आपका O। इस O पॉइंट पे इन तीनों के वजह से जो चार्जेस होंगे वो निकालने हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। A आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A से भाई साहब वो इस तरफ आएगा, ठीक है, दिस विल बी EA, है कि नहीं भाई साहब, ये हो गया EA, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये 3 है और ये भाई साहब है आपका 4, ठीक है, दिस इज बेसिकली 4 एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 3, ठीक है, ओके। सो नाउ ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 37 डिग्री,
क्योंकि आपका साइन 37 होता है, साइन 37 होता है 3/5 एंड साइन 53 होता है आपका 4/5। ये आपका 53 डिग्रीज है, ठीक है। ओके, तो ये ई ए हो गया। अभी देखो ये वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ये इस तरफ पुल करेगा रेडियली इनवर्ड, तो ये हो गया आपका ई बी, ये ई बी का डायरेक्शन हो गया, ये ई ए का डायरेक्शन हो, ये भी नेगेटिव, तो भाई साहब ये ई सी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। पहले अपन ई ए, ई बी और ई सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, मॉड में, मॉड में भाई साहब ई ए की वैल्यू कितनी हो गई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है भाई साहब आपका 18 क्यू बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है भाई साहब आपका 3 का स्क्वायर, क्लियर है। 18 क्यू लिखे भाई साहब, हाँ ठीक है, चलिए भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका कितना 9 ना, 9 2 18, तो 2k क्यू हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। ओके, सिमिलरली ई बी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी के, ठीक है, और आपका 25 क्यू नहीं, माइनस नहीं लेंगे, आई विल लेट यू नो व्हाई, क्योंकि आप मॉड ले रहे हैं, यहां पे आप डायरेक्शन वाइज साइन थीटा कॉस थीटा में ले लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितना हो रहा है आपका 25 क्यू, और ये कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, के क्यू, है ना। ओके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज एट सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, के 16 क्यू अपॉन भाई साहब ये इसका डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना के क्यू, ठीक है। ओके, अभी इस पूरे को अपन एक्स वाई में लेंगे, ठीक है। तो आपका लेट से ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका निकलेगा नहीं, cos 90 0 होती है, तो एक्स एक्सिस में क्या क्या हो जाएगा बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ई सी प्लस ये कितना है ई बी कॉस 37, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इसका कॉम्पोनेंट ना ये जा रहा है, देखो इसका कॉम्पोनेंट इस तरफ निकालो एक्स एक्सिस में, ये कितना हो जाएगा ई बी कॉस 37, और ई सी इसका कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आएगा क्योंकि 90 है भाई साहब, ये वाला एंगल कितना है 90 है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ई सी की वैल्यू कितनी है 6 नहीं के क्यू, ठीक है। ई सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस प्लस मत लीजिए क्योंकि डायरेक्शन ले रहे हैं आप ऑलरेडी, ये -16 है इसीलिए तो ये इसकी तरफ जा रहा है, ये -25 है इसलिए तो इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब आपने नेगेटिव को डायरेक्शन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, तो फिर से नेगेटिव मत लेने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका के क्यू। ई बी की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, ई बी की वैल्यू है भाई साहब के क्यू, ठीक है, प्लस के क्यू कॉस ऑफ 37 कितना हो जाएगा, देखो हाँ, तो साइन 37 अगर आपका भाई साहब है क्या 3/5, देखो ऐसा ट्राइंगल है ना, ठीक है, कोई ट्राइंगल है अगर, तो साइन 37 ये 37 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो गया, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, ठीक है। सो दैट विल बी 4/5, तो दैट विल बी हाउ मच 5 + 4, तो 9kq/5। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, 5kq + 4kq दैट इज 9kq/5 हो गया ये, ठीक है। ओके, एंड दिस विल बी अलोंग विच डायरेक्शन बच्चा पार्टी, x, पॉजिटिव x, आई क्या आप डाल सकते हैं भाई साहब, क्लियर है। ओके, चलिए अलोंग y एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा अलोंग y एक्सिस, बताइए इधर कितना है, नहीं ई बी साइन 37 लिख सकते हैं आप, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो ये ई बी इधर है, तो ई बी साइन 37, और ध्यान दो ई ए इस तरफ है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई बी साइन 37, ठीक है, माइनस ई ए, और इसका कोई कंपोनेंट निकलेगा, कोई 90 डिग्री है भाई साहब, cos 90 0 हो जाती है,
ई बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के क्यू, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया आपका 3/5 माइनस ई ए दैट इज 2kq, तो ये हो गया आपका 2kq। सो इधर हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 3/5 माइनस 2kq, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 3 माइनस 10, सो माइनस 7/5kq, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी जे कैप, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, तो तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच, किधर था भाई साहब ये, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, 9kq/5 आई कैप माइनस 7/5kq जे कैप, ठीक है। चलो तो भाई साहब इसको, तो ऑप्शंस देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे, ऑप्शन वा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन भाई साहब आपका ये वाला करेक्टम, ठीक है, 9kq/5 आई कैप माइनस 7kq/5 जे कैप। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ठीक है। ओके ओके ओके।